Displacement. Tell me what all have you understood? How have you understood what is displacement? What do you know about it? Displacement is like the shortest route to reach the final position. Hmm. Okay, perfect. Tell me, keep telling me. I'm And hearing. then direction and magnitude. So what is direction? What is displacement? What is distance? Distance is like the distance is the thing which is measured in kilometer and something. Acha, the thing that is measured in kilometer is distance. Or meters. Okay. So kilometer. Have you ever heard कि there are kilometer long strings, kilometer long ropes, a meter long rope? तो उसको हम distance बोलेंगे क्या? Nice. हाँ? No. Yes? No. No. Good. Actually, my teachers are like just turning on the video from the Khan Academy and then showing us. Screen sharing, that's it. Huh, but you can also do the work and learn, na? You can also figure it out on your own. So, tell me first, what do you understand of this word, which is motion? Anything which is moving. Anything which is moving. Acha. Are there any requirements that someone needs for the movement? As in, if I'm standing here and you're sitting there, and I'm going from one place to the other, will you be calling this movement? Is this motion? Yes. Yes? Yes. Okay. And if both of us are moving at the same time, okay, so both of us are moving at the same time, will we ever see each other actually moving? That means if both my fingers, if you can see my fingers, are right in front of each other at each step, does one finger think that the other finger is also changing? No? Kaise? How can you, I mean, can you give me a real world example? Kabhi dekha ho aisa? I No? don't Kya? I don't think that will I can see that you're moving. अच्छा, कभी ट्रेन में नहीं बैठी? अच्छा, ट्रेन में जब हम अंदर बैठे हुए होते हैं और बाहर मतलब एक और ट्रेन है हमारे बाजू में, ठीक है, एंड जब जैसे वो चलती है तो वी आर कंफ्यूज्ड कि भाई हमारी ट्रेन चली है या दूसरी वाली चली है, क्योंकि व्हेन वी आर सिटिंग इन द ट्रेन एंड ईदर वी स्टार्टेड मूविंग एंड और दे स्टार्ट मूविंग, बोथ ऑफ अस फील कि दोनों में से कोई एक चलने लगा है, करेक्ट? और जब तक नहीं चल रहा था दोनों में से कोई एक, तब तक both of them were still, they were not in motion. But as soon as one of them started moving, we realized कि either we are in motion or they are in motion. आया समझ में? So that is a very key piece of information and knowledge. ठीक है, तो इसको concept बोलते हैं कि what exactly motion is, and उसका simple है when the position, okay, position of an object or a person or a thing or whatever we are talking about changes from point A to point B. But this is not enough. सिर्फ इससे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि just like how we saw, if I'm changing the position of both my fingers at the same time, both of the fingers won't realize that they are in motion. ठीक है? Another example of this is we are constantly in motion. Earth is rotating as well as revolving. So we are constantly in motion, but we don't feel that we are in motion. Correct? And the reason for that is because everyone, all the people on the earth are moving together. So because all of us are moving together, we don't see the difference कि यार ये तेज जा रहा है, ये नहीं जा रहा. Correct? ठीक है? So motion is the change of position of
an object, thing, person, etc., animal from A to B with respect to a specific point of reference. Any idea what this means? Any idea what this means? I can't hear you. Change of position. I am asking change of position from A to B, correct? With respect to a point of reference. A point of reference. इसका कोई मतलब समझ में आया? What does a point of reference means? I think. No? No. नहीं, बिल्कुल नहीं. Okay. So a point of reference. अभी जैसे मैंने बोला कि पोजीशन तो हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो सकता है और हो भी रहा है. Okay? Both of us are on the earth and so both of us are moving at the same time with the same speed, right? As the earth is revolving or rotating. But we don't think that we are in motion. So हमारी पोजीशन तो चेंज हो रही है, A से B तो जा रही है, ठीक है, बट वो इनफ नहीं है मोशन डिफाइन करने के लिए. मोशन डिफाइन करने के लिए एक क्या चीज होना चाहिए? पॉइंट ऑफ रेफरेंस. पॉइंट ऑफ रेफरेंस मींस कि आप कहां से देख रहे हो. आया समझ में? लेट्स गो बैक टू द ट्रेन एग्जांपल. व्हेन द टू ट्रेन्स, जिसमें एक बार लेट्स कंसिडर कि द टू ट्रेन्स जो साथ में खड़ी हुई हैं और उनमें से एक में वी आर सिटिंग. When we are sitting in the train, we see either one of the trains to start moving. Correct? But अगर मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ या suppose I am on the overhead bridge, it is also possible that both the trains are moving together. Correct? ठीक है? But मुझे ऐसा नहीं लगेगा. When I am sitting in train A, I will just feel either train B is moving or train A is moving. Correct? मेरी डायरेक्शन में अगर वो B उधर जा रहा है और मैं इधर जा रहा हूं तो मेरे को दो एक ही लगेगा कि भाई बस A मूव कर रही है. करेक्ट? बट जैसे ही मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हियर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हेन आई एम सिटिंग इन द ट्रेन. करेक्ट? जहां से मैं मोशन देख रहा हूं. अब मैंने पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या किया? यहां से लेके मैं ऊपर चला गया. आई एम नाउ सीइंग बोथ द ट्रेन्स फ्रॉम द ओवरहेड ब्रिज. What I see now is both the trains are going in opposite directions. So both of them are moving, but each of them think अंदर जो बैठा पैसेंजर है उसको ऐसा लग रहा है कि दोनों में से एक ट्रेन चल रही है. Are you getting the idea? ठीक है? So that is a very important distinction to make. The point of reference. ठीक है? Let me give you another example. Now, suppose you are in a truck. ठीक है? अपन ट्रक में जा रहे हैं हाईवे पे, कोई टेंशन नहीं है, आराम से मस्त होके जा रहे हैं, राइट? जब तक हम ट्रक चल रहा है, we see the road moving, we see the view moving. Correct? ठीक है? That means जब हम ट्रक के अंदर से देख रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है? कि the view is moving. Don't you feel that? हमें consciously पता है कि yes, the trees can't move. We are the ones actually moving. But अगर हम ट्रक और मेरे को, I mean, if I'm sitting inside the truck, if I see them together, will I not think that the tree is also moving, or tree is moving backwards if I'm going forward? Is it making sense, Himanshika? Yeah. Okay, I can't hear you. That's why you need to speak louder. Yeah. Yeah. Okay.
Did you get the idea of point of reference? Can you give me another example of this once? Try. It's not that difficult. कब होता है कि हमें अंदर से कुछ और चीज लगती है और when we see it from a different point of view, we see it differently completely. I mean, it's possible that we see it differently. This is a very crucial understanding. अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे की सारी चीजें आधी आधी समझ में आएंगी. They won't be very, you won't understand what's happening until and unless you understand what actually motion is. आया समझ में? This is the fundamental, this is the basic. Okay, now I'll tell you कि सिर्फ इसके basis पे, can you imagine on just one statement Einstein did his discoveries. जो Einstein की theories हैं, especially the initial ones, they are based on this discovery. Any idea what I'm talking about? Have you heard of Einstein's theories? Gravity न्यूटन की है यार, क्या कर रही है? आइंस्टाइन की हम पढ़ते नहीं है क्योंकि थोड़ा हायर लेवल होता है हमारे लिए, बट आइंस्टाइन नाम तो सुना है? सुना है? ओके. सो आइंस कुछ पता नहीं है पर कि क्या ढूंढा था, क्यों इतना नाम है उनका? नहीं, कभी सर्च भी नहीं किया? ओके. फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है. फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स से मतलब नहीं है. अच्छा, I'll get to the Einstein thing, but I want to understand what do you think of physics? क्या होता क्या है physics? या science हम पढ़ते क्यों हैं? Can you give me an answer to that? To understand the world better. Sorry, you need to be louder यार. इतना. To understand the world better. Understand how? The Understand the. concepts behind everything. Sorry. The concepts behind everything. Yes. So science is about study of nature. Okay. तो हम ये मोशन की बात कर रहे हैं, ये हम इसीलिए सोच रहे हैं कि यार जब मैं चल रहा हूँ, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, ट्रेन चल रही है, I need to understand that. I mean, these are all man-made things, but animals are moving or the insects are moving. All of that comes into motion, right? फिर motion के अंदर ही gravitation, oh sorry, celestial, the planets moving, the galaxies moving, all of that also comes under motion because everything can be explained through this, correct? Similarly, chemistry में, ठीक है, another, which is another part of science, that studies about the chemical properties कि हर चीज, ये बोर्ड किस चीज से बना है, ये वुड किस चीज से बनी है, ये पेन किस चीज से बना है, इसके अंदर जो इंक है वो किस चीज से बनी है, टू द एटॉमिक लेवल. ठीक है, वी आर स्टिल स्टडीइंग नेचर, ओके, बट टू द एटॉमिक लेवल. जो लेवल फिजिक्स का लेवल होता है थोड़ा ब्रॉड, कि वी आर लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. केमिस्ट्री का होता है बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट चीज, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, वुड से किस चीज से बना है, उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं. Because the idea is once you understand what's going on, once you learn something, you can then mold it, you can then change it, correct? क्योंकि जब तक हमें इंक का कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि यार ये इंक होती क्या है, कहाँ से आई, how do flowers leave some colors when they are put on paper, ठीक है, वहां से इंक का कॉन्सेप्ट समझ में आया. वो कॉन्सेप्ट जैसे ही समझ में आया, वी स्टार्टेड मेकिंग आवर ओन इंक. ठीक है, हमें वुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वी स्टार्टेड मेकिंग थिंग्स, वी स्टार्टेड यूजिंग द वुड टू मेक आवर ओन थिंग्स, करेक्ट? ये लैपटॉप, द एवरीथिंग दैट वी हैव which is called man made, the idea is we have learned from nature, okay, understood the concepts and then applied it in our own way. Fine. So इसलिए science is a beautiful thing, very interesting, very fun thing if you start looking around you. ठीक है? Now, have you studied in 8th levers? Levers के बारे में सुना है? The organ? Sorry? The organ liver? नहीं, levers होते हैं ना, pulley होता है जैसे, या
where you put like a दरवाजा खोलने के लिए, या वो सीसॉ वाला जो होता है, you must have studied that. नहीं? Okay, so those are all levers. अलग अलग levers होते हैं कि मैं कहाँ पे फोर्स लगाऊंगा और कहाँ से बॉल उठ के ऊपर जाएगी, या सीसॉ कैसे बैलेंस आउट होगा. ठीक है. Now seesaw is a man-made thing, but a natural living example of that is our hand. Do you think our hand is a lever? नहीं. हम लोग इस palm से we pick up heaviest of the heavy things, correct? Or these two things, which are the forearm and the back arm, they are able to lift it up. ये जो हम यहाँ पे हल्का सा फोर्स लगा, ठीक है. So these are all the ideas. तो यहाँ से किसी ने देखा होगा कि यार ये ऐसा हम हाथ से कर सकते हैं, तो हाथ से कर सकते हैं, तो हम मेटल से क्यों नहीं कर सकते. ठीक है. और इस तरह से नई नई चीजें बना लेते हैं हम. सो इट्स अ वेरी फन एंड इंटरेस्टिंग थिंग. तो कभी ऐसे मत सोच कि मेरे को फिजिक्स पसंद नहीं है, केमिस्ट्री पसंद नहीं है. व्हेन यू स्टार्ट रिलेटिंग इट टू योर रियल लाइफ, ठीक है, एंड रियल लाइफ मीन्स आउटसाइड ऑफ द स्क्रीन. ओके. जब तू देखेगी कि यार पेड़ पे मैं जो यहाँ पे पढ़ रही हूँ क्लास में, दिस इज एप्लीकेबल outside when people are walking or when I see a dog moving, ठीक है, you'll realize कि oh shit, all of the things that I'm learning is actually applicable. Does that make sense so far? ठीक है. Okay, so let's move forward. अब तक आ रहा है देखो समझ में. अभी तक तो हमने we haven't even started the chapter, we've just talked about what motion the topic is, correct? But does that make you clear कि यार ये होता है, पोजीशन का चेंज होना है, ठीक है, विद अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि हम कहाँ से देख रहे हैं. ओके. वंस यू अंडरस्टैंड दिस, देन द सेकंड थिंग कम्स कि ये जो पोजीशन है, ठीक है, अब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो उसको हम डिस्टेंस बोल देते हैं. ओके. दैट मीन्स अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, ठीक है, ए से बी जाने में कोई एक लेंथ है, कोई एक डिस्टेंस है दैट आई कैन मेजर, करेक्ट. ठीक है. और वो जो मेजरेबल चीज है उसको मैं डिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूं. ठीक है. नाउ डिस्टेंस इज स्पेसिफिकली लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड. दैट मीन्स अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ एंड ऑल द अप्स एंड डाउन्स आर, दिस इज a by 2, this is a, this is a, this is a, all of it. ठीक है. तो मेरा कितना हुआ डिस्टेंस? अगर if I started from here and I went through all of this, मेरा डिस्टेंस कितना होगा? दिख रहा है देखो प्रॉपर्ली. कितना होगा? We'll go A, then A, 2A, then A, 3A, then A, 4A, then A, 5A, then A by 2. करेक्ट. ये दिख रहा है A by 2 लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि ये छोटा बन गया मेरे से. Okay. Sorry? 4? Is it 4? No, it's A by 2. Let me write it again. मैं इसको पूरा ही बना देता हूँ. Okay. So everything is A except for this longer one, which is 2A. Fine. To make it easier for you. So A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आगे समझ में? So the distance becomes how much? 9A. 9A. तो अब कैसे बोला तूने ये 9 है? क्योंकि मेजर किया.
द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, कि इतना पाथ चला है, ठीक है. एक्चुअल, imagine if a person is walking, then the person actually walked the distance of 9a. correct. इसमें एक और क्वांटिटी आती है which is called displacement. क्या होता है ये हिमांशु का? A shortest route between the final and initial place. हाँ, तो अब शॉर्टेस्ट रूट का मतलब हुआ, हाँ शॉर्टेस्ट रूट का क्या मतलब हुआ फिर? Shortcut. शॉर्टकट. अच्छा, शॉर्टकट कैसे बनाऊंगा मैं इसके केस में? इसमें What is the shortest distance between 2 points? पहले ये समझ, क्या होता है shortest distance between 2 points? कोई भी मैंने 2 पॉइंट बता दिए, ठीक है. सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. What is the shortest distance between the 2 points? from the middle. Sorry? Middle. No, shortest distance between them. Middle नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है. I'm not asking कि middle क्या है. I want to know कि मेरे को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है, तो मेरे लिए सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा रहेगा? मैं साइड से होके जाऊंगा वो शॉर्ट रहेगा, मैं थोड़ा सा ऐसे कर्व लेके जाऊंगा वो शॉर्ट रहेगा, या मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा वो शॉर्ट रहेगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन. क्यों? गिव मी अ रीजन टू दैट. वही सबसे शॉर्ट होगा. वही शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि अगर, तो अब इसको प्रूव करने का क्या तरीका होता है कि हम उसको मान लेते हैं कि वो शॉर्टेस्ट नहीं है, ठीक है. सो व्हाट वी डू इज वी प्रूव द ऑपोजिट, कि हमने बोला कि यार ये शॉर्टेस्ट नहीं है, दैट मीन्स कोई दूसरा वाला शॉर्टेस्ट है. बट अगर दूसरा वाला शॉर्टेस्ट है तो उसका लेंथ तो ज्यादा आ रहा है. आई मीन दे आर द एरिया दैट दे आर यूजिंग दैट इज मोर, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर एरिया ज्यादा है तो लेंथ भी ज्यादा होगा. दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल. तो ऑटोमेटिकली the straight line between the 2 points become the shortest distance. So displacement then becomes, तो मैं shortest distance लिख रहा हूँ, shortest path लिख रहा हूँ, between इस तरह से लिख रहा हूँ मैं, starting and final positions, ठीक है. That means it becomes a straight line, correct, ठीक है. So अब इसके केस में क्या हो रहा है? If I'm starting from here, मैं इस तरह से एक ट्राइंगल बना रहा हूँ. The shortest path length would be this straight line, ठीक है. तो अब इसको चेक करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? I need this lower triangle, base जो हुआ ट्राइंगल का, and this height of the triangle, correct. I made a right angle triangle. आगे समझ में? So अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको? ये क्या आएगा, मेरा बेस कितना आएगा? 32. अच्छा 4A. 4A कैसे किया तूने? 1 2 3 4 5 आ रहा है मेरा. 5A, ठीक है. So this is 5A. Height? A. करेक्ट. इतना कंफ्यूज क्यों हो रही है? कहाँ गड़बड़ हुई? ऐसे तुक्का नहीं लगाना है. चेहरे से लग रहा था कि तुक्का लगा रही है. ए, ठीक है. 5A कैसे लिखा मैंने? जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, दैट मींस ए ऐसे चले फिर ए ऐसे चले. जो चीज वर्टिकली हो रही है, ठीक है, वो तो ऐड ही नहीं होगी मेरे, करेक्ट.
क्योंकि वो 90 डिग्री पे मैं नीचे जा रहा हूँ, तो मैं तो सिर्फ आगे बढ़ने का देख रहा हूँ कि मैं किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसमें नीचे जा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। करेक्ट। तो मैं फर्स्ट ए गया, फिर यहाँ पे भी ए गया, फिर यहाँ पे भी ए गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो टोटल मेरा 5A आ गया, द बेस ऑफ द ट्राइंगल। हाइट के लिए मैंने क्या किया, नाउ आई सी द वर्टिकल थिंग, कि कितनी बार मैं नीचे और ऊपर गया हूँ। तो मैं एक बार नीचे गया बट मैं वापस ऊपर आ गया, मैं एक और बार नीचे गया बट मैं वापस ऊपर आ गया, और कंटिन्यूअसली एक और बार ऊपर गया। करेक्ट। तो इन टोटल क्या हुआ, ए माइनस ए माइनस ए प्लस ए, तो एट द एंड सिर्फ प्लस ए रह गया। आगे समझ में? नाउ हाउ डू आई फाइंड दिस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ? This is the path length, right? सॉरी, पढ़ा नहीं है क्या पाइथागोरस थ्योरम? हाँ पढ़ा है। पढ़ा है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? A square is equals to नहीं h square is equals to p square plus b square minus b square. एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच कहाँ से आ गया है? Hypotenuse. हाँ, hypotenuse is equal to the base, square of the hypotenuse is equal to the base का square plus the height का square. Correct? तो मैं displacement कैसे निकालूंगा? Let me just मैं इधर कॉर्नर में लिख रहा हूँ, ठीक है? और hypotenuse के लिए मैं कैसे निकालूंगा? Displacement कैपिटल D से डिनोट कर रहा हूँ, will be equal to root of 5A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। Does that make sense? ठीक है, that means ये अंदर क्या हुआ, 25 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट। ठीक है, सो ये 26 A स्क्वायर हो गया, और फिर उसका हम रूट निकाल देंगे। तो अभी मैं पूरा वो नहीं कर रहा हूँ, I'll just write it like this, root of 26A. So my displacement becomes root 26A. आ रहा है समझ में? नाउ दैट इज द मेजर डिफरेंस कि डिस्टेंस क्या होता है, पूरा जो हम चले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर सो फार? ठीक है, इसमें क्लैरिटी आई तेरे को कि क्या डिफरेंस होता है? हाँ. व्हाट एग्जैक्टली इज मोशन? Change of position from A to B with a point of reference. यस, और पॉइंट ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब हुआ? जहाँ से अपन देख रहे हैं, जहां से अपन देख रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? क्योंकि तभी अपन को पता चलेगा उसकी डायरेक्शन क्या है। नहीं यार, डायरेक्शन से क्या मतलब है? डायरेक्शन तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट सिर्फ डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम कितना मूव कर रहे हैं और किस तरह से मूव कर रहे हैं। ठीक है, both the things are important. One is how much are we moving, and second is in what way are we moving. That means if I'm talking about two objects, are both the things moving? Is only one thing moving? If only one thing is moving, how fast is it moving? How slow is it moving? In what direction is it moving? All of those things. ठीक है, तो वो इतनी डिटेल में आ जाता है। क्लियर? ठीक है, now can displacement be negative? Can displacement be negative? Can distance be negative? No. No? क्यों? Because we measured it in only positive. No. I think distance is negative. Why do you think distance is negative? Not sure. I'm not sure. Okay. Distance or displacement
में एक और फर्क होता है। तो डिस्टेंस अभी तक हमने देखा, दिस इज द टोटल पाथ लेंथ, करेक्ट, कितना मैं टोटल चला हूं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है। Now, another difference between them is this has no direction. This has a direction. इसका क्या? Can you give me something? What could this mean? No directions mean no left or right. बस लेफ्ट राइट ही होता है क्या डायरेक्शन? नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाँ, डायरेक्शन मीन्स किसी भी तरह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी हो सकता है। डायरेक्शन कैन ऑल्सो मीन कि मैं सीधा जा रहा हूँ और मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा चक्कर लगा के भी आ सकता हूँ, मैं ऐसा स्क्वायर में भी आ सकता हूँ। ठीक है, मैं यू टर्न लेके भी आ सकता हूँ, मैं बिना यू टर्न लेके भी आ सकता हूँ। ओके, सो दैट मीन्स कि उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। दैट मीन्स if suppose I am moving, so this is my initial position A and I move 4 steps here, ठीक है, एंड मैं रोटेट हो गया। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट उधर। मैं उधर से इधर आया, ठीक है, मैंने 4 स्टेप्स चला हूं, ठीक है, आई मूव 4 स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, इधर तक आया हूं मैं, राइट? सो द डिस्टेंस इज 4 steps. The displacement is also 4 steps. Both of them are equal. Okay, but the displacement has happened in this direction. Okay, this direction is important कि यार वहां से इधर आया हूं मैं। Fine. Now I move back 2 steps. Okay, how much is the displacement and how much is the distance now? Two steps is a displacement, In and which direction now? the other direction. In this direction. In this direction? No, not that direction. In this direction. Yeah. Confused लग रही है। So it is actually क्योंकि हम initial और final point को हमेशा चेक करते हैं। That means कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में कि मैंने initial से final किया, if I join a line and I make an arrow in this direction, then this arrow will show me the direction of the motion. That means the displacement is still in this direction. ठीक है, इसी तरफ है अभी भी। आया समझ में? So 2 steps displacement in the direction of the arrow. The initial और final को जब मैं join कर रहा हूँ और जो एक arrow बन रहा है, that gives me the direction. Distance कितना हुआ? Distance 6 steps. 6 steps. Is there a direction to it? No. Correct? ये आ गया समझ में? ठीक है? Now अब मैं वापस से 2 steps move किया. Fine. What is the distance and the displacement now? Distance is 8 and displacement is 0. 0. Now अगर 0 है तो can it have a direction? No. नहीं हो सकता क्योंकि मेरा इनिशियल और फाइनल दोनों मैच कर गए, दोनों मैच ही कर गए, तो देयर इज नो एरो दैट आई कैन फॉर्म, एंड इफ आई कांट फॉर्म एन एरो देयर इज नो डायरेक्शन। आगे समझ में? ठीक है। नाउ I am still moving, but I am moving another 2 steps in this direction. What is the displacement and the distance now? Distance is 10. Okay, And yes, displacement is -2. -2.
करेक्ट. माइनस का क्या मतलब हुआ इधर? Going back. हाँ, तो माइनस का मतलब हुआ कि अगेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस बिकम्स इम्पोर्टेंट. यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? जहां से मैंने चालू किया. ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से चालू कर रहा हूँ एंड आई एम सेइंग कि यार उस तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा. मैंने खुद ने डिसाइड करके बोला, कोई और आके नहीं बोल रहा. आया समझ में? ठीक है, आई डिसाइड कि मेरे को कहाँ से देखना है. सो आई एम फर्स्ट लुकिंग एट द मोशन फ्रॉम हियर एंड सेकेंड आई एम डिसाइडिंग कि किस तरफ जाना पॉजिटिव है, किस तरफ जाना नेगेटिव है. पॉजिटिव नेगेटिव ओनली शोज द डायरेक्शन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि -2 इज समथिंग बैड. ठीक है, या छोटा डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, छोटा डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट तो 2 स्टेप्स ही है बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. Negative. फाइन. So displacement becomes -2 and the distance becomes 10. So अभी तक क्या देखा हमने कि distance होता है जो हम पूरा कवर कर रहे हैं. ठीक है, displacement होता है initial and final, और फिर हम देखते हैं कि वो किस direction में है. And so the direction becomes very 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 important. Okay, 9th में जो हम मोशन पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी एलिमेंट्री. ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत ही नॉर्मल यूजुअल सा होता है. बट कॉन्सेप्ट्स अगर तेरे को क्लियर नहीं होंगे 9th में तो तेरे को 11th में 10th में भी आएगी दिक्कत, क्योंकि 10th में भी मतलब एक्चुअली 9th में भी आ सकती है, क्योंकि डायरेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ग्रेविटी एंड फोर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ठीक है, बट व्हेन यू एक्चुअली गो टू 11th एंड यू टेक फिजिक्स एंड गेसिंग, दैट टाइम मोशन में बहुत ज्यादा डायरेक्शन पे फोकस होता है और कॉन्सेप्ट्स पे फोकस होता है. ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे एक्चुअली अंडरस्टैंड, दे एक्चुअली टेस्ट यू ऑन हाउ स्ट्रॉन्ग योर कॉन्सेप्ट्स आर. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग सो मच टाइम इनटू दीज टू. ये दोनों बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं. खत्म करना होता मैं फर्स्ट के 10 मिनट में भी हो सकता था, but we literally spent the whole class today in just discussing these two because concepts एक बार clear हुए तो फिर तेरे को आगे दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, so the direction part is that clear? ठीक है, so direction का मतलब ये नहीं है अगर if I'm using the positive or the negative sign कि it is less in any way. ठीक है, -2 का ये मतलब नहीं हुआ कि वो छोटा है. ठीक है, उसका बस ये मतलब हुआ कि इट इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द वे दैट आई एम सीइंग, जो मैंने डिफाइन किया है. ठीक है, तो बेसिकली जब मैं डिफाइन बोल रहा हूँ दैट मीन्स वी हैव सेट द रूल्स. ठीक है, इमेजिन दैट दिस इज अ गेम कि यार आप आगे जाओगे तो पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे, पीछे जाओगे तो नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, बट सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे. ठीक है, तो वो रूल हो गया उस गेम का. तो उसी तरह हम भी एक फिजिक्स में और साइंस में वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेचर. ठीक है, तो हम उसको मैथमेटिकली माइनस प्लस से दिखाते हैं. इज दिस क्लियर सो फार? मानसिका, can you hear me? I think it's stopped or something. बीच में शायद दिक्कत आ गई थी. Okay, now let's move to types of motion. So we'll come back to distance, displacement and velocity, speed, all of those things again. But पहले हम types of motion की बात कर लेते हैं. Straight line. क्या होता है straight line motion? The motion which is in straight line. Motion in a straight line. Uniform motion. No.
यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। तो उससे स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ? नहीं, मतलब उसमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनती है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने से और मोशन स्ट्रेट लाइन होने से बहुत फर्क है. बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट. ठीक है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर. प्रोपगेशन। सॉरी, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। नहीं यार, इट्स कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. कहाँ से पढ़, कहाँ पे सुना है तूने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? Light travels in a straight line. कहाँ पे? Light travels in a straight line. हाँ, so rectilinear propagation is just another word for motion. ठीक है, propagation means कि we are moving towards something. तो rectilinear का मतलब होता है कि एक fixed direction में move कर रहा है. ठीक है, and motion is just, you can change it to any other word also, but rectilinear motion is the common word that we use. Straight line simply means that an object or a person or a thing or whatever is moving in a straight line. Okay, that's it. So when I was giving you this example of going forward and coming back and all of that, that was what? That was a straight line motion ka example. Fine. So motion on a straight line. Now, अब जैसे ही मैंने straight line बोला, I can think of a this kind of a scale. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? Number line. नंबर लाइन. ठीक है, तो हम नंबर लाइन की तरफ सोच सकते हैं. ठीक है, सो अंडरस्टैंड कि नंबर लाइन और मोशन का कोई कोरिलेशन नहीं है. ऐसा नहीं है कि नंबर लाइन हम घुसाने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है. अगर कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में जा रही है, दैट मीन्स या तो वो आगे जाएगी या वो पीछे जाएगी. दो ही ऑप्शन है. ठीक है, दो ही ऑप्शन है. दैट मीन्स आई कैन थिंक ऑफ इट as a number line, as a motion on the number line. Correct? अगर मैं सामने, and this becomes my, ये क्या बना मेरा point of reference. Okay? ये point of reference क्यों बना? क्योंकि मैं इसके comparison में motion को check कर रहा हूं कि इधर से, this is both my point of reference and my initial point. ये आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो मैंने जो जीरो लिया है, आई एम यूजिंग दैट बोथ एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस एज वेल एज द इनिशियल पॉइंट. ठीक है, कि मेरा मोशन स्टार्ट भी इधर से हो रहा है और जो मैं मोशन को देख रहा हूँ वो इस पॉइंट के थ्रू देख रहा हूँ. सो इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड 1 2 3 4 whatever, I can use any unit. ठीक है, अगर मैं if I talk about a car on a highway, I can take this unit as kilometers. If I talk about me walking in this room, I can take this unit as a step, right? If I talk about walking in a park, then I can take this unit as meters, smaller unit too. Okay? जो भी हम यूनिट यहाँ पे चूज करते हैं, दैट इज अपॉन अस. हम किस चीज को चेक करना चाह रहे हैं. ये आ रहा है समझ में? So that means if an object goes forward, comes back, okay, and then stops here, इसका मतलब हुआ क्या कि the final motion, the actual displacement is in this direction, correct, with a magnitude of 1 and a direction in the opposite way. Is this clear? आ रहा है ये समझ में? ठीक है, तो बस जो भी किसी भी मोशन को when we can describe it on a number line,
उस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन बोल देते हैं। आ रहा है समझ में या ऊपर से जा रहा है? अरे ठीक है, आ रहा है? ओके। कुछ भी नहीं आ रहा हो तो पूछना जरूर है, ठीक है? अगर पूछेगी नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा तो देखो बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है? तो स्टॉप कर और पूछ, डरना नहीं है पूछने से। उसी का मैग्नीट्यूड वापस, सॉरी, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ओके गुड। मेरे को लगा भी था कि वर्ड नहीं समझ में आया होगा। सो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है? दैट मीन्स जैसे मैंने 4 स्टेप्स लिए, ओके? So at the end of the 4 steps, the magnitude of displacement. So in कोई भी vectors, ठीक है? There are 2 quantities. वेक्टर एंड स्केलर। पढ़ा हुआ है तूने vectors? हाँ। अच्छा, हम लोग आएंगे उस पे। मैं थोड़ा और आगे जाके फिर लेना चाहता हूँ वो, basically in the next class. But in a vector is anything which has a magnitude and a direction, ठीक है? So magnitude and direction तो clear हो गया तुझे हाँ। कि जिस भी direction में it is pointing towards, ठीक है? motion जिस भी direction में हो रहा है या displacement जिस भी direction में हो रहा है, magnitude is कि कितना हो रहा है। that means in this case the magnitude is 1, ठीक है? क्योंकि जो the final displacement is only 0 और -1 के बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 1 इन द डायरेक्शन व्हाट? द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला कि -1 डजंट मीन कि छोटा है वो। -1 जस्ट मीन्स दैट इज द सेम अमाउंट बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फाइन। अब डिस्टेंस का कितना मैग्नीट्यूड है? 1। सॉरी, अच्छा, डिस्टेंस तो काउंट कर सामने तेरे। 11। सो डिस्टेंस 1 2 3, पहले 3 यहाँ पे आया, ठीक है? देन वापस से वो पीछे जा रहा है, सो 4 5 6 7 8 9, करेक्ट? एंड देन 10 11, ओके? नाउ डिस्टेंस ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड, उसमें डायरेक्शन कुछ नहीं है। उसकी सिर्फ हम क्या पूछेंगे उसमें, ये नहीं पूछेंगे व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन ऑन डिस्टेंस, we will never ask in which direction the distance was. No, what was the magnitude of distance, what distance was covered, right? And so when we are asking that question, we are essentially asking what is the magnitude, kitna chale ya kitna aage बढ़े. Fine. So magnitude just means the quantity, kitna hai uske andar, kitna वो काम किया है, कितना चले हैं. Fine. Now, so straight line motion हो गया. What is the other form of motion? अच्छा, What? नहीं, I thought you were asking about the quantity. Sorry? I thought you were asking about the quantity. No, I'm asking ki, so we are doing the types of motion first and we'll finish this topic quickly. So straight line एक होता है जब same direction में चल रहे हैं. There's another one which is called projectile motion. सुना है कभी ये? नहीं। Projectile motion होता है when we throw a pen, a stone, something which is thrown like this against the gravity. So उसका जो vector है वो इस तरह से कुछ बनता है इस किसी एक एंगल पे. अगर ये मेरा बेस है, suppose my hand is the base, then if I'm throwing it at an angle, what happens is the stone or the ball will make Curve. not the perpendicular, but it will actually make
समथिंग लाइक दिस। जब कोई पत्थर फेंकती है, ठीक है, तो वो ऐसे जाके और ऐसे ही तो लैंड करता है, करेक्ट? सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ पैराबोला। तो ये अपन को डिस्कस नहीं करना है, बट दिस शेप इज कॉल्ड अ पैराबोला, ठीक है, एंड दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अभी तेरे काम का नहीं है, इट्स नॉट कमिंग फॉर यू, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. So straight line, when an object is moving straight line. Projectile motion, when an object is moving in the form of a parabola, ठीक है, जब किसी एक एंगल पे हम थ्रो करते हैं किसी चीज को, ठीक है। So इसको मैं सिंपली लिख देता हूँ, thrown at an angle to the ground. Fine. And उसके बाद आता है हमारा सर्क्युलर. Okay, circular motion, simple, when an object is moving in a circle. Okay, we will go into detail of straight line. Straight line की detail तो हम पूरे में पढ़ ही रहे हैं. Circular motion हम towards the end of the chapter discuss करेंगे कि किस तरह से work करता है. But just to give you an idea as to what the different types of motion are, these are the ways. Okay. All the other types of motion, कोई भी और motion तो देख रही है कि भाई square में move कर रहा है, rectangle में move कर रहा है, hexagon में move कर रहा है, जिस भी तरह से move कर रहा है, all of them can be broken down into these three components. Okay, तो इन तीनों के अलावा और कोई type of motion नहीं होता है. Fine. Now quickly, what is uniform, non-uniform motion? And we'll stop here. Uniform motion is the in equal intervals, equal distances traveled. And in non-uniform motion, non-equal distance and equal intervals. Distance या displacement? Distance. Distance. दोनों नहीं हो सकते. Yes, sir. यही तो बात है, इसी में तो मजा आता है. Okay, so uniform is same amount, same magnitude every time. That means 2, 2, 2. Okay, in the same unit of time. Same unit of time मतलब अगर मैं 1 सेकंड बाद चेक कर रहा हूँ हर बार, that means हर 1 सेकंड में अगर वो 2 मीटर्स जा रहा है, ठीक है, हर 1 सेकंड में 2 मीटर्स कवर हो रहे हैं, then this is a uniform motion. ठीक है, suppose a person is running and we're checking the time for a fast runner, and at every 1 second he or she is covering 2 meters. Then they are moving with a uniform motion. Okay, non-uniform means कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है. ठीक है, अब ये सपोज दिस इज टोटल 3 सेकेंड्स, ये टोटल 3 सेकेंड्स के लिए चेक किया, यहाँ पर भी मैंने 3 सेकेंड्स के लिए चेक किया. पहली बार में तो 2 मीटर चला वो, ठीक है, बट दूसरी बार में क्या हुआ, वो चला 3 मीटर्स. That means for the next 1 second, each interval is 1 second. Fine. And last में थक गया वो, तो वो सिर्फ 0.5 ही चला. Okay. Now what is happening here? In each 1 second gap, the distance covered is different. ठीक है, and so this is called non-uniform. कि जो हम टाइम ब्रैकेट ले रहे हैं, जो भी टाइम ब्रैकेट लें, उसमें अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये आगे क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसमें व्हाट डू वी यूज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट?
Distance. No, we can use both. We can use both. ठीक है? Distance and displacement दोनों से हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, मतलब दोनों से हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं है. ओके, when we are talking about a direction, if the motion has a proper direction and we are giving a specific direction to the motion, then we are talking about displacement. ठीक है, तो अगर मैं आगे जाके वापस पीछे आ रहा हूँ और मेरे को चेक करना है कि कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हर बार, तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ. ठीक है, बट अगर द डायरेक्शन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी, इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई मैं जिस भी मतलब मैं जितना किलोमीटर मूव कर रहा हूँ, इज दैट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पैन, then I'm just talking about the distance. Then I don't care about the displacement that I'm moving in. आए समझ में? ठीक है, so that is the important thing. Fine. The time span, जो हम टाइम स्पैन यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पे डिपेंड करता है. वी कैन चूज दैट टाइम स्पैन. करेक्ट. नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. सपोज आई मेक दिस एज 1. ये 0.5 लिया था मैंने, उसको मैं 1 कर दिया. ठीक है. नाउ इफ आई टेक द टाइम स्पैन एज 1 सेकेंड ईच टाइम, हर बार मैं हर 1 सेकेंड में चेक कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? At every 1 second 2 meters is being run. Okay, so this is uniform, but this is non-uniform. Correct. But अगर मैंने time span 3 seconds कर दिया, okay, suppose now I take the time span to be 3 seconds. In 3 seconds this person is also moving 6 meters, and this person is also moving 6 meters. Okay, now if in every 3 seconds this person is moving 6 meters and that person is also moving 6 meters, okay, then both of them become uniform. ये आया समझ में या ऊपर से गया? हाँ, नहीं आया? ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? हमने यहाँ पे 1 सेकेंड लिया हुआ है. ठीक है, अब मैं इस पूरे से चेक करता हूँ. ओके, सो अभी 1 सेकेंड के केस में दिस इज यूनिफॉर्म, 1 सेकेंड के केस में दिस इज नॉट यूनिफॉर्म. करेक्ट. बट अब जैसे ही मैंने 3 सेकेंड का गैप लिया, सो 3 सेकेंड में ये जितना चला, अब मैंने इसको एक और बनाया कि हर 3 सेकेंड में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है भाई ये वाला. This person is also following the same pattern in the next 3 seconds also. That means in the next 3 seconds पहले 2 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, फिर 1 मीटर चला. करेक्ट. अब मैं जब 3 सेकंड से देख रहा हूँ, ठीक है, जब मैं 3 सेकंड के गैप पे देख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? हर बार ये भी 6 मीटर्स चल रहा है और ये भी 6 मीटर्स चल रहा है. ठीक है. अब सो दोनों का जो डिस्टेंस है इन द 3 seconds इज इक्वल एवरी टाइम. ठीक है, हर बार मैं जब चेक कर रहा हूँ तो वो 6 मीटर्स ही चल रहा है एट एवरी 3 seconds दैट आई एम चेकिंग. सो माय इनिशियल यूनिफॉर्म मोशन का जो रिक्वायरमेंट था, विच इज सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, इज getting solved. मतलब it is acceptable. ठीक है, तो both of them become uniform motion. ठीक है, तो I feel कि देखो अभी भी थोड़ा सा confusion लग रहा है इसमें, है क्या? नहीं, अभी तो नहीं है. अभी नहीं है. ठीक है, गुड. तो अगली बार मैं और मतलब थोड़ा सा एक एग्जांपल दे के बता दूंगा. अभी आई थिंक वी क्रॉस्ड आवर टाइम, सो मैथ्री सर इज वेटिंग फॉर योर मैथ्स क्लास. फाइन. So I'll give you an example and you'll understand it much better in the next class. Okay?
and next time we'll take velocity, acceleration, and motion. Have you done the motion in with graphs? अभी तक नहीं हुआ है स्कूल में? ठीक है. So we'll probably get up on that also. We'll start that as well. ठीक है, and थोड़े problems भी ले लेंगे. Fine. चलो, perfect. Okay. Any questions so far? नहीं? ठीक है. चलो. Just wait for a second. Netri sir will just